Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students, today we will explore the facts about the entitled theme Operant Conditioning Theory of Learning. As we know that operant conditioning theory of learning, it is propounded by American-born behavioral psychologist, namely B.F. Sickner. The theory is based upon there is no stimulus and response mechanism, यानी कि स्टिमुलस के बगैर भी हम रेस्पॉन्सेस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जो पेवलोनियन कंडीशनिंग अप्रोच है, दैट अप्रोच इज नोन एज एस टाइप ऑफ अप्रोच. इट मीन्स एवरी रेस्पॉन्स इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नोन स्टिमुलस. स्टिमुलस के बगैर कोई भी रेस्पॉन्स हम हासिल नहीं कर सकते हैं. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के मुंह में तब तक पानी नहीं आ सकता है, सलाइवा नहीं आ सकता है, जब तक कि हम उसे आइसक्रीम नहीं दिखाएंगे. इट मीन्स द response is in the form of saliva which is generated because of stimulus. I mean to say you ice cream. यानी कि जब तक कि हम एक इंडिविजुअल के मसल में पिन से प्रिक नहीं करेंगे, तब तक एक इंडिविजुअल को पेन महसूस नहीं हो जाएगी और इंडिविजुअल विल नॉट लिफ्ट द मसल. Now, so far as B.F. Sickner is concerned, B.F. Sickner basically rejected the notions of Ivan Pavlov. और B.F. Sickner का जो अप्रोच है लर्निंग का, दैट इज आर टाइप ऑफ अप्रोच. इट बिलीव्स विदाउट द नून स्टिमुलस. जरूरी नहीं है स्टिमुलस नून होना चाहिए. द B.F. Sickner believes on unknown stimulus. Stimulus is secondary, but primary is the response. On the basis of one's own initiatives, organism can generate the responses. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हाथ को खड़ा करना है तो मुझे इसके लिए स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. अगर मुझे खाना है कुछ तो मुझे उसके लिए फूड दिखाना ज़रूरी नहीं है. फूड इज़ सेकेंडरी एज ए स्टिमुलस, बट प्राइमरी इज़ फर्स्ट द रेस्पॉन्स. अगर मुझे बैठना होगा तो बैठने के लिए मुझे स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. यानी कि कोई भी एक्टिविटी कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है, फर्स्ट इज़ द रेस्पॉन्स, then is the stimulus, as per operant conditioning theory is concerned. Dear students, जैसे कि हम जानते हैं, operant simply means operation or activity, or we can simply say that act which is performed by the organism, and the behavior is known as operant behavior. B.F. Sickner, as a behavioral psychologist, he has conducted the series of experiments on various animals, and his famous experiment was conducted on pigeons and rats. And on the basis of those experiments, the B.F. Sickner finally propounded the theory. That theory is known as operant conditioning theory. Keeping in view the experiment which is performed by the B.F. Sickner as a behavioral psychologist, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए B.F. Sickner ने मॉडिफाई किया पजल बॉक्स ऑफ थॉर्नडाइक. जिस तरीके से हमने अर्ली थ्योरी में डिस्कस किया है, थॉर्नडाइक हैज गिवन द थ्योरी. दैट थ्योरी इज नोन एज ट्रायल एंड एरर थ्योरी. ट्रायल एंड एरर थ्योरी को propound करने के लिए उसने कैट पे एक एक्सपेरिमेंट किया. किस तरीके से थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट को केज में रखा और फिर उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे थॉर्नडाइक हैज propounded the theory. That theory is known as trial and error theory, which is based on the principle that practice makes a man परफेक्ट. थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स को B.F. Sickner ने मॉडिफाई किया, एंड ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन pigeon and rats.
So that box is known as Skinnerian box. यानी कि I mean to say you, Skinnerian box was basically the alternative form of or modified form of the puzzle box of Thorndike. क्योंकि B.F. Skinner खुद कहता है I have been highly influenced by the notions of Thorndike, particularly the law which is given by Thorndike. That law is known as law of effect. और B.F. Skinner ने खुद भी इस law of effect पे काम किया है. On the basis of the notions of Thorndike, the B.F. Skinner finally propounded the theory which is known as operant conditioning theory. Experimental arrangement. B.F. Skinner ने एक बॉक्स को लिया. That box is known as Skinnerian box. अब इस बॉक्स का नाम क्यों Skinnerian box पड़ा? क्योंकि उसने अपने नाम को इस बॉक्स के साथ जोड़ा. And the B.F. Skinner put the hungry and thirsty rat inside the darkened soundproof box. उसने एक भूखे रैट को इस डार्कनड साउंडप्रूफ बॉक्स में रखा, क्योंकि जो वो बॉक्स था दैट वाज प्योरली साउंडप्रूफ बॉक्स एंड मोर एवर दैट कंप्लीटली डार्कनड. यानी कि उस बॉक्स में कंप्लीटली अंधेरा छाया हुआ था. और जो ये बॉक्स था इट वाज साउंड प्रूफ बेस्ड. साउंड प्रूफ आई मीन टू से यू, ना तो अंदर का साउंड बाहर चला जाता था, ना तो बाहर का साउंड अंदर चला जाता था. दैट इज वाई इट वाज साउंड प्रूफ. इस बॉक्स का जो फ्लोर था दैट वाज ग्रिड टाइप. ग्रिड मीन्स यानी कि इसमें एक स्लैब थी और हॉरिजेंटल रोज भी उस फ्लोर में थे और वर्टिकल रोज भी उसमें थे. एंड देयर वाज द स्पेस, प्रॉपर स्पेस बिटवीन द लाइन्स. और उन लाइन्स से आसान होता था चूहे को चलना. तो इस तरीके से स्किनर ने इस स्किनरियन बॉक्स को बनाया था. एंड इट वाज कंप्लीटली डार्कनड. डियर स्टूडेंट्स, फूड मिलने से पहले इस बॉक्स में साउंड या लाइट जलती थी. एंड दिस वाज वर्किंग एज ए सिग्नल और क्यू फॉर द रैट कि मुझे फूड मिलने वाला है. इस तरीके से रैट का बिहेवियर ट्रेन किया गया था. नाउ इन ऑर्डर टू गेट द फूड, आई मीन टू से यू रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट, द रैट हैज टू नेसेसरली प्रेस द लिवर. और इस रैट को सिखाया गया था कि आपको फूड एक कंडीशन में मिल सकता है, इफ यू विल प्रेस द लिवर. अगर आप सही तरीके से लिवर को प्रेस करोगे. यूं ही एक चूहा लिवर को प्रेस करता था तो फीडर मैकेनिज्म के जरिए कप से फूड आता था एंड द रैट वाज सेटिस्फाइंग हंगर नीड. इस तरीके से रैट जो है वो हंगर ड्राइव को सेटिस्फाई करता था. और कंप्लीटली एक रैट ने लर्न किया था जब तक कि लिवर को प्रेस नहीं किया जाएगा तब तक में रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन्स, इन द फॉर्म ऑफ फूड प्लेट नहीं हासिल हो सकता है. एंड मोर एवर दैट द हंग्री रैट हैज आल्सो लर्नड कि फूड मिलने के लिए एक और क्लियर कंडीशन थी. देयर मस्ट एंड ऑट टू बी द लाइट और पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड. जब एक डार्कनड और साउंड प्रूफ बॉक्स में लाइट या साउंड नहीं बजता था तो उस वक्त जो चूहा होता था वो बिल्कुल खामोशी से बैठ के होता था या सोता रहता था. बट वंस देयर वाज द साउंड और द लाइट एंड इट बिकम्स द क्लू फॉर द हंग्री रैट दैट द फूड इज कमिंग, तो मुझे फूड मिलने वाला है. इस तरीके से एक अनट्रेन्ड ऑर्गेनिज्म की बिहेवियरल मॉडिफिकेशन B.F. स्किनर ने की थी. डियर स्टूडेंट्स, मोरओवर द लिवर वाज कनेक्टेड विद द रिकॉर्डिंग सिस्टम. जो ये लिवर था ये कनेक्टेड था रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ. क्यों रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ? क्योंकि जब एक
रैट लिवर को प्रेस करता था तो उसे रीइंफोर्समेंट मिलता था इन द फॉर्म ऑफ फूड पैलेट्स। तो वहां पर रिकॉर्ड भी होता था कि किस टाइमिंग पे जो रैट है वो प्रेस लिवर को करता था, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस, कि कितने रेस्पॉन्सेस वो देता है प्रेस करने के लिए, और ओवरऑल बिहेवियर एक ऑर्गेनिज्म का जज होता था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे द बीएफ सिकनर हैज propounded द थ्योरी, दैट थ्योरी इज नोन एज operant conditioning theory. Apart from it, B.F. Sickner has also conducted the experiment on hungry pigeon. पिजन का भी बिहेवियर मॉडिफाई किया था जब उसे बॉक्स में रखा गया था। आई मीन टू से केज के अंदर पिजन था और उस केज में एक डिस्क था, और रीइंफोर्समेंट रिवार्ड मिलने के लिए इस कबूतर को ट्रेन किया गया था हाउ टू पैक द डिस्क सो दैट गेट द रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन्स। और कंप्लीटली वहां पर भी लाइटनिंग मैकेनिज्म था। कबूतर ने सीखा था, पिजन हैज लर्नड व्हेन देयर इज रेड लाइट, जब रेड लाइट यानी कि बॉक्स के अंदर होती है, उस केज के अंदर जलती है, उस वक्त पिजन को खाना नहीं मिलता था, और जब ग्रीन लाइट होती थी तो पिजन को उस वक्त खाना मिलता था। सो पिजन हैज कंप्लीटली लर्नड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट। जब ग्रीन लाइट होती है तब मुझे खाना मिलता है, तो उसी वक्त पिजन जो है वो पैकिंग करता था डिस्क को एंड गेट्स द रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन्स। और जब रेड लाइट होती थी उस वक्त या तो पिजन बैठ के होता था साइलेंटली या पिजन सो के होता था। सो पिजन कंप्लीटली लर्नड to distinguish or differentiate between green light and red light, because green light was the indication for the reward and reinforcement, and red light was the indication for that there is no any kind of reinforcement or reward. रेड लाइन के वक्त उसे कोई भी reinforcement नहीं मिलता था। यह सब कुछ सीखा था एक अनट्रेनड पिजन ने। इस तरीके से इस अनट्रेनड पिजन का बिहेवियर मॉडिफाई किया था B.F. सिकनर ने। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, चाहे आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर लो विच इज propounded बाय द एल थॉर्नडाइक, ऑफ आइवन पेवलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की जिक्र कर लो, या अपार्ट फ्रॉम दीज टू थ्योरीज देयर इज थर्ड बिहेवियरल थ्योरी, दैट थ्योरी इज नोन एज operant conditioning theory which is propounded by B.F. Sickner. All are these called the behavioral psychologists. और इनका कॉमन नैरेटिव ये है, with the help of environment we can shape, modify and mold the behavior of untrained organism. यानी कि हम एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, when we will provide the conditions, I mean to say you environment, because it is the environment which plays important role in order to shape the behavior of any organism, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है। If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.